Good morning, students. How are you? I hope you will be fine. Today, I welcome you in our computer practical class of MS Word. Today, I will demonstrate you how we can work in MS Word. Now, we are using the Windows 10 platform. The screen which you are seeing, it is the desktop of our computer of Windows 10 platform. How you will open MS Word? First of all, you have to go to the start button, then click a list of the different applications installed into the system will appear in front of you, and you are to select Microsoft Office. Whatever the version you have, you can click on that. The further sub list will appear in front of the system, then you can select Microsoft Word or Simple Word. Now this is the very first screen of MS Word when you will open it. It contains different options. Out of these options, you are to select blank document. Why blank? Because we will do the things on the blank paper. Just like your notebook, that you have the different blank pages on which you write, like that we also do the work in MS Word. This is the window of MS Word for working here. This window contains different components of it. The very first line of this document is known as the title bar. This title bar contains the title of the document in the form of document 1 by default and the name of the application, that is Word. In the middle, at the right hand side, it has different options. This is the minimize option. This is maximize option or restore button. It is the close button. If you want to close, click on that, it will be closed. And at the left hand corner, it has different buttons for different activities. It is for saving, it is for undo, it is for redo, it is for the font color. This is known as the access toolbar. Below to it, these are the different buttons. These buttons are known as the different menus also. Whenever you click on a tab, corresponding to that, different commands or different buttons which contains a particular command which is basically used to perform a particular action on our document of. These are different for the different tabs or different menus. Now we have clicked on this home tab. It contains, first of all, this is the clipboard. It is the font group. It is paragraph group. It is styles group. And it is the find, replace and select options are also available on this. If we click on insert button, another set of different commands opens here. If we click on design, it is related to the design of the document. And after it, when we are coming to home, and just below to these groups, there is this counting has been written 1 2 3 4 5, and at the left hand side it is also written. These are both known as the rulers. It is the vertical ruler or it is the horizontal ruler. It displays us the size of our document or size of our page. This is this white space which you are watching here. This is known as the work area. Work area means the area, जो एरिया जहाँ पर हमने टाइपिंग करनी है, जहाँ पर अपने कमांड्स अप्लाई करनी है, उसको हम वर्क एरिया कहते हैं। वर्क एरिया के बाद जो है आपका आता है ये वाली ब्लू लाइन. This blue line is known as the status bar of our document window. इसके ऊपर जो है आपको ये दिखाएगा आपके जो डॉक्यूमेंट है उसमें कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड्स हैं और कौन सी जो है आप लोग लैंग्वेज इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं. और उसके बाद जो है इसके राइट कॉर्नर के ऊपर जो है आप लोगों को दिखा रहा है पेज का लेआउट कौन सा आप लोग यूज़ करते हैं. उसके बाद जो है इसकी जूम दिखाता है, यहाँ से आप जूम इंक्रीज़ कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज जूम इन. अगर डिक्रीज़ करना है दैट इज़ नोन एज जूम आउट. हम 100% बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है, आप इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं एज यू
required for it. Now I am coming for the typing. अब हम इसके आ रहे हैं टाइपिंग पोर्शन के ऊपर। आप लोग जो है टाइप कर सकते हैं। मैं कुछ लाइनें जो है इसके ऊपर टाइप कर रहा हूँ। Now students, we have written 1.5 line. You can also have written it in the form of different sentences for different lines. I have created these different lines here. These are the 3 lines which I have typed. After typing, we can perform the different commands on it. How we can use it? Now, first of all, we are to select whatever the portion you will select. The commands will do the action only on the selected area, not of the others. When we select the area, it will be displayed to you the different its operations. First of all, by clicking the mouse, we can select how. Just take the mouse to the beginning of the document or beginning of the location from where you want to start selecting. Press the left mouse button, hold it down and drags up to the last area up to which you want to select. सेलेक्ट करने के बाद जो है आप लोग इन कमांड्स के ऊपर आ सकते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर इसके फ़ॉन्ट के स्टाइल की। डिफरेंट फ़ॉन्ट के स्टाइल्स आ गए। जो भी आपको अच्छा लगता है यू कैन सेलेक्ट एनी वन। सो मैंने सेलेक्ट किया तो ये आपका हो गया। इसके ऊपर यहाँ से हम आए, ये फ़ॉन्ट का साइज़ है। जो भी साइज़ आप चाहते हैं क्लिक ऑन दैट, इट विल बी अप्लाइड। उसके बाद जो है आपका आता है कुछ कमांड्स हैं, हाईलाइटिंग कमांड्स जिसको हम बोलते हैं। इनमें से क्या है, बी फॉर बोल्ड, इस पर क्लिक करते हैं तो बोल्ड आपका अप्लाई होगा। ये देखिए अप्लाई नहीं हो रहा। क्यों अप्लाई नहीं हो रहा? क्योंकि हमने जो है फ़ॉन्ट ऑलरेडी जो है वो बोल्ड वाला सेलेक्ट कर रखा है। मैं इसको जो है चेंज करता हूँ यहाँ से, ये हमने सेलेक्ट कर दिया और अब हम इसको बोल्ड को अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। ये देखिए अब हट गया। हटने का मतलब कैसे ही आपको दिखाएगा, अगर ये डार्क नहीं है इट मीन्स इट इज़ नॉट अप्लाइड, इट इज़ ऑफ। नाउ इफ यू क्लिक इट, अब देखिए इसका थोड़ा डार्क हो गया। दैट इज़ द बोल्डनेस मीन्स ऑफ थिकनेस ऑफ द टेक्स्ट। ये है आपका आई मीन्स इटैलिक्स। ये थोड़ा सा आपका टेक्स्ट जो है वो थोड़ा तिरछा हो जाएगा। ये देखिए अप्लाई करने से इफेक्ट आ रहा है। इट इज़ फॉर द अंडरलाइन, क्लिक ऑन इट। नाउ वी हैव अप्लाई ऑल द 3 ऑप्शंस। हमने बोल्ड अप्लाई कर दिया, इटैलिक्स अप्लाई कर दिया और अंडरलाइन अप्लाई कर दिया। अब जिसके ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे आप, ये हट जा रहे हैं। देखिए एक बटन जो दोनों एक्शंस परफॉर्म करता है, एक बार क्लिक किया अप्लाई हो गया। अगर वो अप्लाई है दोबारा आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं वो हट जाता है। सच टाइप ऑफ बटन्स आर नोन एज द टॉगल बटन्स। टॉगल का मतलब होता है उल्टा। एक बार अप्लाई कर दिया, दूसरी बार क्लिक किया हटा दिया। अगर अप्लाई है तो अब हटा देगा, और हटा हुआ है नॉन अप्लाई है तो उसको अप्लाई कर देगा। उसके बाद आता है दिस इज द स्ट्राइक थ्रू। का मतलब क्या होता है, बीच में से टेक्स्ट को काट देगा एक लाइन के द्वारा। ये आपका स्ट्राइक थ्रू होता है। नाउ यू कैन ऑल्सो सेट द टेक्स्ट कलर। दिस इज द ए ऑप्शन। जो ए लिखा हुआ है इट इज अ फॉन्ट कलर। आप इसको सेट कर सकते हैं। इसके छोटा सा स्मॉल एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करिए, ये डिफरेंट कलर्स ऑप्शंस आगे, क्लिक ऑन दैट, वो आपका जो है इफेक्ट लग जाएगा। अगर आपने इसके बैकग्राउंड का कलर सेट करना है तो आप लोग सेलेक्ट करिए और यहाँ से जो कि हमने इसके ऊपर हम गए, जो कलर आपने करना है क्लिक ऑन दैट, इट विल सेट दैट पर्टिकुलर कलर जस्ट एज अ बैकग्राउंड ऑफ द
टेक्स्ट एरिया। अब ये इन नीचे वाली दो लाइनों के ऊपर हुआ, ऊपर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ऊपर? क्योंकि हमने ऊपर को सिलेक्ट नहीं किया, और ये मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ, जो सिलेक्टेड एरिया होगा उसी के ऊपर जो कि आपके कलर्स होंगे, बाकी के ऊपर एक्शंस परफॉर्म नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम चलते हैं अब नेक्स्ट पैराग्राफ ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो उसके बाद सबसे पहले इसमें आता है हमारा बुलेट्स एंड नंबर्स। उनको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? बट बुलेट्स एंड नंबर से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि वी हैव 3 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स। अलाइनमेंट होता क्या है? अलाइनमेंट इज द एरिया और द डायरेक्शन ऑफ द टेक्स्ट इन विच साइड वी वांट टू अरेंज आवर टेक्स्ट। उसको हमें अपना जो टेक्स्ट हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर है उसको कैसे किस साइड में अरेंज करना है, उसको ये डिसाइड करती है अलाइनमेंट्स। ये हमारे पास 4 तरह की होती है। दिस इज़ द लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट। इनमें डिफरेंस क्या है? जब हम क्लिक करते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट के ऊपर, द टेक्स्ट स्टार्टिंग ऑफ एवरी लाइन विल बी इक्वल। जो स्टार्टिंग होगी हमारी वो इक्वल स्पेस से, इक्वल लोकेशन के ऊपर, इक्वल पॉइंट से स्टार्ट होगी, और जो राइट साइड होगी वो जो है हमारी छोटी बड़ी आगे पीछे हो सकती है। उसके अंदर वो टेक्स्ट का जो स्पेस बचेगा वो आपकी लाइन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम बात कर रहे हैं होगा कैसे, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जो भी टेक्स्ट आप टाइप करते हैं वो आपका जो है लेफ्ट अलाइन होता है। इसके ऊपर देखिए करके हो रहा है, ये देखिए। सेकंड आती है सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट के अंदर क्या होगा, आपका जो टेक्स्ट होगा वो सेंटर में आ जाएगा, जो भी गैप बचेगा वो दोनों साइडों में इक्वल बचेगा। थर्ड अलाइनमेंट आता है राइट अलाइनमेंट। जैसे कि हमने आपको कहा था कि जो आपकी लाइनें स्टार्ट होंगी लेफ्ट लाइन के अंदर वो एक पॉइंट से स्टार्ट होंगी। अब राइट अलाइनमेंट के अंदर क्या है, जो हमारा राइट साइड में जो लाइनों का जो एंडिंग है वो आपकी इक्वल रहेगी। स्टार्टिंग जो है आपकी छोटी बड़ी आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं फोर्थ टाइप की और तरफ, जो हमारा कहलाता है जस्टिफाई अलाइनमेंट। क्लिक ऑन इट। जैसे हम जस्टिफाई अलाइनमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं, उसमें क्या होता है कि उसके अंदर जो है आपका जो टेक्स्ट है वो जो है इक्वल रहेगा दोनों साइडों से, और जो भी एक्स्ट्रा गैप बचेगा वो बीच में आएगा। आपके टेक्स्ट के जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनके बीच में गैप आ जाएगा ऑटोमेटिकली। परंतु उसके लिए आप लोगों को एक ध्यान रखना होगा, ये आपका तभी वर्क करेगा जब आपकी लाइंस जो हैं अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज होती हैं, या आपकी कंप्लीट लाइन है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है एंटर प्रेस करके डिफरेंट लाइंस बनाई थी, इसलिए जो आपको ये वर्क यहाँ पर नहीं कर रहा था। तो इसलिए जो है आई एम गोइंग टू इस्टेब्लिश इट। देखिए यहाँ पर क्या है, अब हमने जो है जो हमारा पैराग्राफ था हमने इसको स्टार्ट में ले लिया है, इसको हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद जस्टिफाई के ऊपर क्लिक करते हैं। ये देखिए लेफ्ट साइड इक्वल है, राइट साइड इक्वल है। जो गैप्स हैं हमारे इन अल्फ़ाबेट्स और वर्ड्स के बीच में आ चुके हैं। देखिए क्लिक करते हैं इसके ऊपर अगेन, देखिएगा ये देखिए बीच में गैप आ रहा है, देखिएगा। इसको हम जस्टिफाई अलाइनमेंट बोलते हैं। जस्टिफाई अलाइनमेंट के बाद जो है हम चलते हैं आगे। अब बुलेट्स और नंबर्स जो मैंने अभी पहले आपको बताया था उनको कैसे हमने सेट करना है। ये देखिए ये भी आपके जो है पैराग्राफ्स के ऊपर वर्क करते हैं, ये लाइंस के ऊपर वर्क नहीं करते, क्योंकि आप जब भी जहाँ भी आप एंटर प्रेस करेंगे वहीं से आपका नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होता है और नेक्स्ट लाइन आपकी नहीं होती। अब हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, हमने पैराग्राफ्स को। यहाँ हम बुलेट्स के ऊपर आए, एरो पे क्लिक किया। अगर आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल होगा वो आ जाएगा। अगर अपनी मर्जी का स्टाइल आप लोगों ने लगाना है तो क्लिक ऑन इट, और ये देखिए वट एवर द स्टाइल यू वांट, क्लिक ऑन दैट, वही स्टाइल आपका इसके अंदर सामने आ जाएगा। सभी लाइन पर नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि जो है ये लाइन जो है हमारी अपने आप ब्रेक होकर के आई है। इसका जो है मैं छोटा आपको साइज करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए जितने आपके डिफरेंट पैराग्राफ्स होंगे, पैराग्राफ्स के अंदर आपके आएंगे सिंबल्स और नंबर्स। ये हमने उसके बाद जो है इसको हमने सेट किया, दोबारा सेलेक्ट किया इसको। ये हमारे बुलेट्स आए थे। ये नंबर्स कैसे अप्लाई करने हैं, नंबर के ऊपर क्लिक करिएगा। डिफरेंट स्टाइल्स हैं नंबर्स के, 1 2 3 है। ये 1 2 3 विद ब्रैकेट्स हैं। ये रोमन कैपिटल नंबर्स हैं, रोमन अल्फ़ाबेट्स हैं। ये स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं ब्रैकेट्स के साथ। ये स्मॉल रोमन नंबर्स, ये आपके सिंपल स्मॉल ABC, वट एवर यू वांट, क्लिक ऑन दैट। ये देखिए ये लग गया आपका। दूसरा कोई नंबर लगाना है, यू कैन सेलेक्ट इट and just click here, or you can select anyone whichever you want, it will be displayed. Okay students, for today it's enough.
I hope that you have understood this and you will try at your systems and type the text and apply all these commands. If you have any problem, you can discuss with us. So for today it's enough. Thank you and have a nice day. Okay.